So, hello students. In our last two classes, we have discussed about the electrochemistry, the definition of electrochemistry, the different type of the electrochemical cell, and then we have also discussed about the electrode potential, the standard hydrogen electrode, what is the use of the standard hydrogen electrode, and this is our third class of electrochemistry. So very important basic things of electrochemistry, this is actually here in our third class. Okay, so first of all we will discuss about the electromotive force. What is the electromotive force? The cell potential is the difference between the electrode potential. Most importantly, in bracket I have written the reduction potential. Okay, that is very important, of cathode and anode. So the cell potential or the electromotive force is the difference between the electrode potential, electrode reduction potential of cathode and anode. It is called cell EMF of cell when no current is drawn through the cell. Okay, so the E cell, that actually E right minus E left. I have written ER minus EL. I have already discussed, that is rel. You just remember the rel. It is ER minus EL. And when you represent the cell, at the right hand side we have to represent the cathode reactions, and in the left hand side we have to represent the anode. Means at the right hand side we have to write the reduction part, and in the left hand side we have to write the oxidation part. So the E cell, that is the E right minus E left, that is E cathode minus E anode, or you can write also E reduction minus E oxidation. Whatever you can write, but you have to remember E right minus E left. So that is the IUPAC notation, IUPAC notation for representing the electromotive force. And another important thing is also that when we write that ER minus EL, that ER means the E of reduction minus E of oxidation, that should be the reduction potential, not the oxidation potential. Okay, for suppose the zinc 2 plus 2 electron, it gives zincs, that is the reduction. So for that the required potential, that is the reduction potential. But the zinc minus 2 electron, which gives the zinc 2 plus, so that is the oxidation. So the potential required for this reaction, that is the oxidation potential. So very importantly, you just remember that E cell is equal to ER minus EL, or E reduction minus E oxidation, and along with when you are writing the E reduction or when you are writing the E oxidation, that should be in the form of the reduction potential. Okay, that should be in the form of the reduction potential. I am repeatedly saying this thing क्योंकि मेन यहीं पर गड़बड़ होता है. मैं देखा हूँ जो भी स्टूडेंट्स लोग करते हैं, मेनली इस जगह पर गलती होता है कि ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट वो लोग लिख देता है, या ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन वो लोग लिख देता है. बट मैक्सिमम कहाँ गलती होता है, जब वो लोग ई रिडक्शन लिखता है तो वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, और जब वो ई ऑक्सीडेशन लिखता है वहाँ पर ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखता है. बट वो सही नहीं. ये ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ये मेनली जो मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन था, जैसे मैं लीनियरली उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बस उसके लिए मैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लिख रहा हूँ. ओके, बट वहाँ जब मैं ईएमएफ का वैल्यू मुझे निकालना है, तो वहाँ पर मुझे ई रिडक्शन में भी मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, और ई ऑक्सीडेशन जो लिखा है उसमें भी मुझे रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है. ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो. मैं ऑब्वियसली कुछ एग्जांपल में इसको दिखाऊंगा तो और ये क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन. I have written already the cell representation. When we are
when we have talked in case of the standard hydrogen electrode, or when we are taking the standard hydrogen electrode as anode and the zinc sulfate couple as cathode, or copper sulfate couple at cathode, then on that time I have already told that the cell representation. Again I am just telling the cell representation here. The cell representation जो है, जब हम लोग vertical one single line देंगे, that is our metal and electrolyte solution. तो जब मैं सिंगल लाइन दूंगा इसका मतलब ये हो गया मेटल जो रॉड जो सॉलिड है, और जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा तो उस जगह पर मुझे सिंगल लाइन देना। मतलब जहाँ भी मैं देखूंगा कि फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस कहीं भी फेज चेंज हो रहा है, उस केस में मुझे सिंगल लाइन देना है। और डबल लाइन तब देंगे, डबल लाइन मुझे तब देना है जब सॉल्व ब्रिज की बात करूंगा, क्योंकि कोई भी जब भी मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करता हूँ उसका एक साइड में कैथोड रहता है, एक साइड में एनोड रहता है, और दोनों को लिंक करने में मुझे सॉल्व ब्रिज लगाना पड़ता है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग ऑक्सीडेशन वाला को लिखते हैं जो हाफ सेल है, और राइट साइड में मैं रिडक्शन जो हो रहा है उस हाफ सेल को रिप्रेजेंट करता हूँ, और दोनों के बीच ऑब्वियसली मुझे सॉल्व ब्रिज ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पर एक मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, दैट इज कॉपर सॉलिड कॉपर 2+, इसे Ag+ और Ag होगा। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन जो है इज ये सपोज मुझे एक सेल रिएक्शन दे दिया गया है, दैट इज कॉपर सॉलिड + 2Ag+, which gives the copper 2+ + 2Ag। सपोज ये सेल रिप्रेजेंटेशन मुझे दे दिया गया है, तो इसका हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा है तो और Ag + Ag बन रहा है, तो हाफ सेल रिएक्शन में मैं लिखूंगा 2Ag+ + 2 इलेक्ट्रॉन gives 2Ag सॉलिड, एंड कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों को जब हम लोग सम अप करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो मेरा सेल रिएक्शन था ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐसे करके हाफ सेल रिएक्शन को लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट केस जो है दैट इज 2Ag+ + 2 इलेक्ट्रॉन which gives 2Ag सॉलिड, तो ये एक्चुअली क्या है, दैट इज अवर रिडक्शन। ऑब्वियसली दैट इज अवर रिडक्शन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्लस इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज अवर रिडक्शन, और जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सो द नेक्स्ट केस इन केस ऑफ कॉपर, सो दैट इज अवर ऑक्सीडेशन। तो जब मैं सेल रिप्रेजेंटेशन करूंगा, मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ, तो ऑक्सीडेशन को मुझे लेफ्ट साइड में लिखना है। तो देखो इसलिए कॉपर जो पोर्शन है इसको मैं लेफ्ट साइड में लिखा हूँ, और कैथोड मतलब जहाँ पर मेरा रिडक्शन हो रहा है जो सिल्वर सिस्टम है उसको मैं इस सेल रिप्रेजेंटेशन का राइट साइड में। ठीक है, और इसके बीच में मैं क्या दिया हूँ, दैट इज आवर सॉल्व ब्रिज। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा उस केस में मुझे याद रखना है कि दो जो हाफ सेल है उसके बीच में मुझे सॉल्व ब्रिज देना है, और सेल रिप्रेजेंटेशन का लेफ्ट साइड में मुझे ऑक्सीडेशन लिखना है, दैट मीन्स एनोड का चीज़ लिखना है, और सेल रिप्रेजेंटेशन का राइट साइड में मुझे रिडक्शन मतलब कैथोड लिखना है। ठीक है, अभी बात आ रहा है कि मैं सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करूँ। मेन सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन, जब मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू राइट द solid, that is the electrode. So first of all we have to write the electrode, so copper solid, then single vertical line, then copper 2+ aqueous, because यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली मुझे एक लाइन देना पड़ेगा, तो कॉपर सॉलिड कॉपर 2+। ठीक है, और इस साइड में मुझे क्या करना है, फर्स्ट मुझे जो एक्वस सोल्यूशन है उसको लिखना है, और उसके बाद मुझे जो इलेक्ट्रोड है तो उसको मुझे लिखना है। तो इसलिए मैं फर्स्ट में Ag+ को लिखा हूँ, उसके बाद मैं Ag सॉलिड को लिखा हूँ। तो इसको कैसे याद रखोगे, ये जो पोर्शन है इसको तुम देखो, हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि जो सोल्यूशन होता है जैसे कॉपर सल्फेट और सिल्वर का जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन दोनों के बीच में मैं सॉल्व ब्रिज करता हूँ। ये चीज़ याद रखना कि सॉल्व ब्रिज के दोनों साइड में ऑब्वियसली एक्वस चीज रहेगा। ठीक है, याद रहेगा, सॉल्व ब्रिज के दोनों साइड में मेरा एक्वस चीज को रखना है, और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में मुझे सॉलिड दैट इज इलेक्ट्रोड उसको मुझे लिखना है। ठीक है, और एक इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये सेल रिप्रेजेंटेशन का, क्या है देखो, ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूँ
इसमें जो मेरा हाफ सेल रिएक्शन होता है उसके हिसाब से ये सेल रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बन जाता है। कैसे? जब मैं कॉपर 2+ लिख रहा है, इसका मतलब कॉपर से कॉपर 2+ फॉर्म। देखो यहाँ पर कॉपर से कॉपर 2+ फॉर्म हुआ है। और ये जब मैं लिख रहा हूँ राइट साइड में Ag+ और Ag, इसका मतलब क्या है? Ag+ से Ag में। ठीक है, ये भी एक सेल रिप्रेजेंटेशन का आसान तरीका है यार। तो कुछ पॉइंट्स, वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सिंगल वर्टिकल लाइन मतलब कोई भी फेस चेंज। डबल वर्टिकल लाइन का मतलब है सॉल्व ब्रिज। तो सॉल्व ब्रिज मुझे जब भी मैं सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखूंगा उसका मतलब उस सॉल्व ब्रिज का जो 2 वर्टिकल लाइन है उसके एक तरफ एक एक्वस सोल्यूशन होगा और दूसरी तरफ और एक एक्वस सोल्यूशन होगा। अभी लेफ्ट साइड जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर मुझे क्या लिखना है? वहाँ पर मुझे ऑक्सीडेशन मतलब एनोड का रिएक्शन लिखना है और राइट साइड में मुझे रिडक्शन और कैथोड का रिएक्शन लिखना है। ठीक है, और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में ऑटोमेटिकली मुझे जो इलेक्ट्रोड है उसको मुझे लिखना है। हो गया? आई थिंक ये क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन जो हो गया, इस रिएक्शन का ई सेल का वैल्यू क्या होगा? दैट इज ER-EL रेल। एंड इम्पॉर्टेंट जो थिंग जो मैं डिस्कस किया, यहाँ पर देखो ER और EL जो है दैट इज रिडक्शन और EL मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ पर दोनों को जो वैल्यू है इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हूँ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ R के लिए रिडक्शन और L ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन। ये नहीं, देखो यहाँ पर Ag+ से Ag लिखा हूँ, दैट मीन्स दैट इज अवर रिडक्शन। और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? कॉपर 2+ से कॉपर, सो दैट इज ऑल्सो अवर रिडक्शन। ठीक है, तो ई सेल जब भी मैं लिखूंगा तब भी मुझे ER-EL करना है, मतलब रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करना है। तो ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिडक्शन और ये जो ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ, ये जस्ट डिफाइन करता है कि रिडक्शन जो है इसका मतलब हो गया मेरा सेल का राइट साइड का पोर्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन का लेफ्ट साइड का पोर्शन। ठीक है, बट जब भी मुझे ई सेल निकालना है तब मुझे याद रखना है कि मुझे इसको इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। ये जो मैं बात किया था ऊपर में रिडक्शन पोटेंशियल का, उस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर कभी भी गलती मत करना, मैं बार बार ये पॉइंट को बोल रहा हूँ। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ER-EL दैट इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर दो केस में मुझे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिखना है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द EMF एंड द सेल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग कैसे इसको मेजर करते हैं? So here the potential of individual half cell cannot be measured. Okay, the potential of individual half cell, only zinc 2+ or copper 2+, that cannot be measured. We can measure only the difference between the two half cell potentials, that is the EMF of the cell. So we can measure only the EMF of the cell. When we determine the value of zinc 2+, that is 0.76 volt, there also we can see that at the anode we have taken the SHE, that is standard hydrogen electrode, and in the cathode we have taken the zinc 2+ couple or copper 2+ couple. So we can find out only the EMF of the cell, we can't find out the individual half cell. Okay, so that is also important to remember. So here the main thing I have told, the what is EMF, the E cell, the EMF that is equal to E right minus E left, ER-EL और E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। बट ये दोनों को मुझे रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्म में लिखना है। और मैं सेल रिप्रेजेंटेशन की बात किया हूँ, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मुझे लिखना है ऑक्सीडेशन एंड राइट हैंड साइड में मुझे लिखना है रिडक्शन। दोनों के बीच में सॉल्व ब्रिज देना है। सॉल्व ब्रिज जहाँ भी देंगे उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ऑब्वियसली एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सॉल्व ब्रिज दो एक्वस सोल्यूशन को कनेक्ट करता है। और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में मुझे इलेक्ट्रोड को लिखना है। ठीक है, ये सब पॉइंट को याद रखो तो आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द नॉन स्टिपुलेशन।
तो बुक में तुम लोग जस्ट नॉन इक्वेशन का एक एक्सप्रेशन देखोगे, बट मैं यहाँ पर नॉन इक्वेशन को डिराइव कर रहा हूँ। वेरी इजी है, एकदम आसान है, इजीली हो जाएगा। सपोज मेरे पास मेटल है जिसका चार्ज है n+, सपोज कॉपर 2+, ओके, सो दैट शुड बी इन द एक्वस मीडियम प्लस n इलेक्ट्रॉन। सो जो होगा, सपोज 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तो अल्टीमेटली इट विल फॉर्म m सॉलिड, दैट इज कॉपर सॉलिड। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट लिखें। तो इसके लिए दो इक्वेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक है डेल जी इज इक्वल टू -NFE और एक इक्वेशन है डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT/ln(k). ये दोनों इक्वेशन को जस्ट याद रखना है। एक इक्वेशन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज डेल जी इज इक्वल टू -NFE। यहाँ पर डेल जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग लिख रहे हैं इन द अबव इक्वेशन, n प्लस इलेक्ट्रॉन m सॉलिड, वहाँ पर जो n है दैट इज आवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। F इज द फैराडे मीन्स 96500 कूलम और 96496 कूलम। ठीक है, और E जो लिख रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जो एक्वस सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, वो अगर 1 मोलर है और टेम्परेचर इज 298 केल्विन, तो ये हम लोग नॉट लिख सकते हैं। तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट। ओके, सो डेल जी नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट। और जो और एक इक्वेशन में जो बात किया, दैट इज डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT/ln(k). तो यहाँ पर डेल जी और डेल जी नॉट का दोनों का वैल्यू लिख दो, तो -NFE इज इक्वल टू -NFE नॉट प्लस RT/ln(k) हो जाएगा। तो इसके बाद इस जो इक्वेशन आया उसको -NF से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है? -NF से। तो -NF से अगर मैं डिवाइड किया तो ये इक्वेशन क्या आएगा, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT/NF/ln(k). ठीक है, तो ये मेरा मेन फर्स्ट इक्वेशन है। और तुम लोग बुक में देखोगे ln की जगह पर log लिखता है, क्योंकि ln का मतलब है 2.303 log। और ये जो RT/NF/ln जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो इट विल गिव 0.059/n, क्योंकि यहाँ पर R इज नोन, दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T दैट इज ऑल्सो नोन, दैट इज 298 केल्विन। इफ आई एम टेकिंग 298 केल्विन बिकॉज जो मेरा स्टैंडर्ड होता है, तो T इज इक्वल टू 298 केल्विन, और F इज फैराडे दैट इज ऑल्सो नोन 96500 कूलम, और ln को 2.303 log लिख सकते हैं। तो ये जो RT/NF/ln जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अगर हम लोग उसका वैल्यू के हिसाब से अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.059/n log। ठीक है, ये पोर्शन आएगा। तो मेरा टोटल इक्वेशन क्या आएगा, इट इज E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059/n log ऑफ K। K का मतलब होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट अगर है, तो रेट कांस्टेंट को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो मेरा प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग को फर्स्ट लिखना है ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखें उसका जो कंसंट्रेशन, और नीचे में क्या लिखना है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो था इसको मुझे लिखना है नीचे में। ठीक है, तो बिकॉज K इज द रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का मतलब ये होता है, तुम लोग शायद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम लोग को याद है, तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, K इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट हम लोग को ऊपर में लिखना पड़ता है जो फॉर्म हो रहा है उसका कंसंट्रेशन, और नीचे में लिखना पड़ता है जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन। तो ऑब्वियसली सॉलिड के लिए एक्टिव मास जो होता है और मोलर कंसंट्रेशन ऑब्वियसली 1 होता है। तो ये इक्वेशन का हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059/n log ऑफ 1 कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये जो एग्जांपल इसको थोड़ा ठीक से देख लो। देखो यहाँ पर सपोज तुम्हें एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, दैट इज निकल सॉलिड, निकल 2+, सॉल्ट ब्रिज, Ag+, Ag सॉलिड। सपोज ये एक मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो इससे फर्स्ट मेरा काम ये होगा, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है तो इससे मुझे सेल रिएक्शन लिख लेना है। तो सेल रिएक्शन में कैसे लिखूंगा, एकदम आसान है, जैसे मैं बोला था कि ये निकल से निकल 2+ हो रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन से लिखना एकदम आसान है।
तो निकल से निकल 2 प्लस हो रहा है और Ag प्लस से Ag हो रहा है, ये मुझे दिमाग में रखना है। इसीलिए देखो मैं क्या किया हूँ, निकल से निकल 2 प्लस हो रहा है और Ag प्लस से Ag हो रहा है, और यहाँ पर निकल से निकल 2 प्लस है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसीलिए मैं जो फाइनल इक्वेशन में ये 2Ag प्लस आ रहा है, यहाँ भी 2Ag आ रहा है। ठीक है, तो तुम लोग एक बार अपने हिसाब से एक बार लिख लेना। फर्स्ट जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इससे जो फिजिबल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है दैट इज निकल से निकल 2 प्लस, ये लिखना, और उसके बाद Ag प्लस से Ag, ये दोनों को लिखना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को अगर कैंसिल आउट करना है तो ऑब्वियसली Ag प्लस से जो Ag हो रहा है उससे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए मैं ये सेल रिएक्शन लिखा हूँ। अभी सेल रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि मुझे K का वैल्यू लिखना है। जो लास्ट इक्वेशन है उसमें मुझे क्या था, log K था, तो K मैं कैसे लिख पाऊंगा? K मैं लिख पाऊंगा जब मैं ये टोटल सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तभी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तुम लोग देख सकते हो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन एक्चुअली मेरा अबाव जो सेल रिएक्शन है उससे ही आया है। ऊपर में मैं क्या लिखा हूँ, Na2 प्लस का कंसंट्रेशन, क्योंकि Ag तो सॉलिड है, उसका तो वैल्यू 1 है, तो लिखने में अगर लिखूंगा तो कोई ज़रूरत है नहीं। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो निकल सॉलिड और 2Ag प्लस है, तो यहाँ पर मुझे Ag प्लस को लिखना है क्योंकि वो एक्वस में है, बट वहाँ पर एक 2 भी है जो मेरा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, तो ऑब्वियसली वो स्क्वायर टर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा है सेल रिएक्शन क्यों लिखना है। अगर ये सेल रिएक्शन में नहीं लिखता तो Ag प्लस का स्क्वायर ये छूट जाता, मैं सिंपल Ag प्लस लिख देता तो मेरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता। तो जस्ट इसको याद रखो कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है तो तुम्हारा फर्स्ट काम होगा उसका हाफ सेल रिएक्शन लिख के टोटल सेल रिएक्शन को निकालना। ठीक है, सेल रिएक्शन जब निकाल गया तो उससे मैं K का भी वैल्यू लिख सकता हूँ और उसको मैं लास्ट इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ जो है फाइनल जो इक्वेशन। तो इसलिए मैं लिखा हूँ दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059/2। 2 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, इसमें मैं 2 लिखा हूँ, लॉग ऑफ निकल 2 प्लस बाई Ag2 प्लस स्क्वायर। इसके बाद थोड़ा एरो देके मैं नीचे लिखा हूँ, तो इसका मतलब E0 सेल जो होगा यहाँ पर, और एक चीज जो देखो, ये जो E0 सेल जो मैं यहाँ पर देख रहा था टॉप में, E0 सेल जो मैं देख रहा था, E0 सेल का वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? E0 सेल का मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ बाई E0R माइनस E0L। तो E0R यहाँ पर राइट साइड में कौन है? राइट साइड में Ag है, लेफ्ट साइड में निकल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसीलिए मैं E0R में E0 Ag प्लस Ag और लेफ्ट साइड में E0 Na2 प्लस Na लिखा हूँ। अगेन और एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, इसीलिए Ag प्लस बाई Ag लिख रहा हूँ, नॉट Ag बाई Ag प्लस। Ag बाई Ag प्लस होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और निकल 2 प्लस निकल लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी मेरा रिडक्शन फॉर्म में है, निकल स्लैश निकल 2 प्लस लिखूंगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये वैल्यू तुमको एग्जाम में दे देगा। E0 Ag प्लस Ag का वैल्यू 0.80 है, निकल 2 प्लस निकल का वैल्यू माइनस 0.25 है, तो ये करके मेरा आ गया E नॉट सेल का वैल्यू आ गया 1.05 वोल्ट। तो ये जो लास्ट इक्वेशन जो आया था, यहाँ पर जो E नॉट सेल है इसका वैल्यू क्या आएगा 1.05 वोल्ट, और निकल 2 प्लस और Ag प्लस का अगर कंसंट्रेशन तुम्हें दिया हुआ है जैसे 0.1 नॉर्मल 0.01 नॉर्मल अगर ऐसे दिया हुआ है तो मैं इजीली E सेल का वैल्यू निकाल सकता हूँ, which gives actually the cell EMF, which is very important for any type of the cell। और अगर कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, सपोज निकल 2 प्लस और Ag प्लस दोनों यूनिटी है, मतलब 1 मोलर है, तब तो राइट साइड पार्ट मेरा चला गया, ये पोर्शन मेरा चला गया। ठीक है, तो तब उस टाइम में क्या आएगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, जो एक्चुअली होता है इन केस ऑफ द स्टैंडर्ड केस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड केस में क्या होता है, हम लोग ऑब्वियसली 1 मोलर ले लेते हैं और 298 केल्विन ले लेते हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट और एक पॉइंट मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन। ये पोर्शन को देखो ठीक से, हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन। वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम E सेल इज इक्वल टू 0। जब भी कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम लेते हैं हम लोग जानते हैं कि डेल जी का वैल्यू भी 0 होता है, और ऑब्वियसली डेल जी अगर 0 है तो ऑब्वियसली ई सेल का भी वैल्यू
जीरो हो जाएगा। तो ई सेल अगर जीरो हो गया तो ई जीरो सेल क्या होगा नास्ट इक्वेशन से, दैट इज आर टी बाई एन एफ एल एन के, दैट इज 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि 2.303 आर टी बाई एफ इसका वैल्यू आता है 0.059 जब हम लोग टी का वैल्यू 298 केल्विन लेते हैं। तो ये जो के है, के को हम लोग के सी लिख रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो के सी के पी के एक्स आई थिंक तुम लोग को याद है, हम लोग क्लास 11 में रीड किए थे इक्विलिब्रियम मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, दैट इज ये जो अबव इक्वेशन जो था, इस इक्वेशन से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज ई जीरो सेल और ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के सी। तो दैट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द ई नॉट सेल। तो ऐसे ही इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग इजीली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम ई नॉट सेल। तो ठीक है, ये न्यूमेरिकल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम्हें कोई सेल रिप्रेजेंटेशन दे देगा तब मुझे तुम्हें सेल का रिएक्शन लिखना है, तभी मैं के का वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये ई जीरो सेल जो बात कर रहे थे, ई जीरो सेल का वैल्यू मुझे ऐसे निकाल लेना है जो मैं तुम लोग को सिखाया, दैट इज ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, और दोनों को मुझे रिडक्शन फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है, कौन ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बेसिक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये नास्ट इक्वेशन बोलो या ई सेल या ई नॉट सेल या ई सेल, ई नॉट सेल मतलब ई सेल इक्वल टू ई एम एफ, ये जो क्वेश्चन जो मैं डिस्कस किया, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो। कोई भी क्वेरी है तो पूछो। ये न्यूमेरिकल जब मैं दूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।